Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to discuss here a very important topic, and that topic is projectile motion. Dear students, this is a two-dimensional motion, or we can say the motion in a plane. Dear students, because when particle changes its position here in projectile motion, both x and y coordinates change with respect to time. I will clear these things when I discuss here projectile motion. So dear students, without discussing here anything else, I will come to my point, and that point is what is projectile motion. Dear students, see here, please keep attention here. Let us take this to be as a ground. And dear students, I am also taking along this as x. Let us take this to be as origin while I am here observing all things. तो बेटा मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक और एक्सिस ले ली, and that axis is y axis, and I am projecting here a body. I am launching here a body. I am throwing here a body, giving some initial velocity. Giving some initial velocity u, मैंने कुछ body को velocity u यहाँ दे दी. देखो बेटा, I launched the body with some initial velocity u, and after that I left it to move under the effect of gravity alone. It will adopt this path. It is just like this when I am throwing a body here, just like this, or just like this, just like a ball is thrown by a player, and it makes an angle, something angle theta with the horizontal. But you are giving some initial velocity and then left to move this body under the effect of gravity alone. Only force here beta है gravity, gravitational force है, और acceleration क्या है? That is gravitation, acceleration due to gravity, and that gravity acts, that acceleration acts vertically downwards, that is along negative y axis, because j cap here is direction of y axis but in the negative direction. This g remains here constant, a remains here constant. So this projectile motion is a type of uniform acceleration motion. But dear students, it is a 2D motion. 2D का मतलब क्या है? जब हम इसको थ्रो करते हैं तो बेटा जब ये चलती है, जब ये पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करती है, सपोज मान लीजिए कि उन्होंने यहाँ से यहाँ तक अपनी पोजीशन चेंज की, ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ इट्स पोजीशन बोथ कोऑर्डिनेट्स, यहाँ एक्स को चेंज आ रहे हैं बेटा, यहाँ इस दौरान किस कोऑर्डिनेट को चेंज आ रहे हैं? वाई कोऑर्डिनेट. So at that time both x and y coordinates change, and thus we can say that this is a two-dimensional motion, and is also known as a motion in a plane because ये किस प्लेन पर हो रही है? x y प्लेन पर हो रही है. और बेटे यहाँ हम एक चीज नेग्लेक्ट करते हैं, और वो चीज नेग्लेक्ट क्या है? हम यहाँ we neglect air resistance. क्या नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ बेटा? What we neglect here, dear students, we neglect here air resistance. Also, dear students, this g is taken to be as constant. It means that the ball is not thrown too much height above the surface of Earth. Above the surface of Earth, it must be thrown to such a height such that g should not get changed. G should remain constant. So dear students, this type of motion is a uniform accelerated motion. I will write here definition, dear students. Write definition. What is projectile motion, dear students? When a body or object is given some initial velocity, When a body or object is given some initial velocity, and then left to move under the effect of gravity alone. Under the effect of gravity alone, such a two-dimensional motion is known as such a 2D motion
2D motion means two-dimensional motion is known as इसको क्या कहेंगे बेटा? This motion को क्या कहेंगे? Such a motion is known as projectile motion. Is known as projectile motion. देखो क्या है? When a body is given some initial velocity and then left to move, ये चल रही है, but under the effect of gravity, only force क्या मानते हैं? Gravity. और air resistance को क्या कहते हैं? Neglect. There's such a two-dimensional motion, that is when it moves, both x and y coordinates change. Such a 2D motion or such a motion in a plane which takes place only under the effect of gravity is known as projectile motion. The body here is known as, the body which is thrown is known as projectile, and the path that is adopted by the projectile is known as trajectory. Dear students. तो बेटे क्या कहेंगे? बाल को क्या कहेंगे? यहाँ इस बॉडी को क्या कहेंगे? The body here is known as, body or object is known as projectile. And dear students, we know that path of projectile का दूसरा नाम है trajectory. तो यहाँ trajectory क्या है इसकी? ये trajectory of it is parabolic path. This path is a parabola. So which path it adopts? It adopts a path like this 2D path, and that 2D path, that is both x and y changes during the motion. So the path is like this, and this shape is a parabolic shape. So the path of projectile here is, so the trajectory here is a parabola. तो बेटा आपको आई बात समझ में? हाँ आई. ओके, वेरी नाइस. सो ओनली एक्सेलरेशन क्या है? ओनली एक्सेलरेशन हियर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बाकी ओनली फोर्स हियर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. बाकी सभी फोर्स एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे हैं. एनी अदर फोर्स वी नेग्लेक्ट हियर, कर्वेचर ऑफ द अर्थ वी नेग्लेक्ट, और जी यहाँ कांस्टेंट रहना चाहिए. दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट डज नॉट गोज टू मच हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, वेरी नाइस डियर स्टूडेंट. सी डियर, आप क्या है यहां देखो बेटे क्या है. फॉर एग्जाम्पल यहां मैं एग्जाम्पल दूंगा बेटा आपको. when a player kicks a football, and that football, the motion of the football is a two-dimensional motion, provided this should not get changed due to air. It should not move here and there. It should move, but when moving during motion, only x and y should change. This should not go here and there. If football makes a turn during the motion, then at that time it is not a projectile motion, then it is a three-dimensional motion. But projectile motion is a two-dimensional motion. Dear students, another example is here. If throwing of a ball by a player at an angle with the earth, and that throwing of a ball is a two-dimensional motion because the motion takes place only under the effect of gravity, and we neglect air resistance. It should not move here and there. If it moves here and then there is the involvement of z-axis, and at that time we cannot see that this is a projectile motion, and it is not at that time 2D motion. At that time it is 3D motion. Just like when a bowler throws a ball, it swings. When it swings, then at that time it is not two-dimensional, it is three-dimensional. It should be parabolic, but it should not go like this. It should go upwards, it should go, that is horizontally. At that time only x and y coordinates. जैसे बेटे मैंने यहाँ थ्रो की, तो यहाँ x और y की चेंज होनी, यहाँ ये ऐसे नहीं होनी चाहिए कि स्विंग हो गई, ऐसी हो गई, मूव हो गई बॉल. तो at that time it is a three-dimensional. You should keep these things in mind because इस वक्त air resistance काम आ रही है. Okay, we neglect here air resistance. Okay, very nice. तो for example बेटे क्या लिखा मैंने? Kick when a footballer kick a ball. When a football is in motion, लेकिन हवा रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट होनी चाहिए, इधर उधर हवा में नहीं होनी चाहिए. When a football is in 2D motion, ऐसे लिखो, ये मत लिखो. Throwing of a player, पहले ये लिखो फिर लिखेंगे. When a footballer kicks a, when a football player kicks a football such that air resistance should not change its path. Only change should be, it should go along, change should be along x-axis and change should be along y-axis. It should not go here and there. Okay.
then it is possible, otherwise not. And at that time air resistance we neglect. See here. तो दूसरी बात क्या है, throwing of a ball by a player, throwing of a ball by a player, by a cricket player. ओके, और भी एग्जांपल्स है कि the amount of water that is ejecting from a tap, and that is also the motion of, when it is just like a tap, water, the water that it adopts the path, and that path is also known as projectile motion. I will discuss these things later on. Let us go from simple to complex here. Okay, there are so many firing of a gun. When we fire a bullet from a gun, then the bullet adopts a parabolic path. It both x and y coordinates change, and such type of motion is known as projectile motion. Okay, nice. देखो बेटे क्या है? Okay, very nice. अब देखो क्या है? Now, what I have to discuss here, dear students? Here, this projectile motion is of two types. It is of two types. बेटा इसकी कितनी types हैं? दो types. Projectile motion is of, it is of two types. It is of two types. क्या क्या type है यहाँ? One type here is, that is this type. That is जो मैंने यहाँ शक्ल बने, that diagram that I have here mentioned here, that I have drawn here. First is angular projectile motion. Angular projectile motion. And dear student, the second type is horizontal projectile motion. Horizontal projectile motion. There are two types of projectile motion, and one type, dear students, is angular projectile motion, and other type is horizontal projectile motion. I will discuss these one by one, but first of all, dear students, I will discuss here angular projectile motion. और बेटा जो मैंने यहाँ ये मोशन जो यहाँ मैंने दिखाई, this type of motion is angular projectile motion. And then I will discuss horizontal motion, and that takes place at a certain height when we throw a ball. But I will discuss this motion later on. First of all, I will discuss here angular projectile motion. So I will throw light on angular projectile motion. तो बेटा देखिएगा यहाँ, see here. See here. So I will discuss here first of all. क्या मैं discuss करूँगा बेटा यहाँ? The motion that I will discuss here, the projectile motion rather that I will discuss here is angular projectile motion. ये क्या होती है angular projectile motion बेटा? देखो, when a ball is given some initial velocity and is thrown at an angle with the horizontal direction, then such a 2D motion which takes place under the effect of gravity only is known as angular projectile motion. देखो angular projectile motion क्या होती है? When a body or object is given some initial velocity, at an angle with the plane, at an angle with the horizontal line of earth. When a body is given some initial velocity, you here at an angle with the ground, with the horizontal line, and that horizontal line is here ground, the plane of the ground. Such a 2D motion is which takes place under the effect of gravity alone is known as, such a 2D motion is known as angular projectile motion. Is known as, बेटा क्या इसको कहते हैं? Angular projectile motion is known as angular projectile motion. But here G should remain constant, because this should take place under the effect of gravity, and gravity should remain constant because this is a case of uniformly accelerated motion.
Okay, but 2D motion, So when a body is given some initial velocity at an angle with the ground, then the motion, 2D motion of this body is known as angular projectile movement, because it is thrown with some angle, given some initial velocity with angle, with making an angle with the horizontal. So that type of motion is known as angular projectile motion. Okay, nice. Have you got this? Very nice. We will discuss this. We will discuss this type of motion, and then after that we will discuss horizontal projectile motion. पहले ये डिस्कस करेंगे. Horizontal क्या होती है बेटा? थोड़ा बताएंगे, लेकिन डिस्कस बाद में करेंगे. Horizontal is thrown at a certain height above from the earth. Horizontal projectile motion क्या होती है बेटा? That is thrown with some initial velocity, यहाँ horizontally लेते हैं. That is parallel to the ground. और फिर ये ऐसे path adopt करते हैं. यहाँ initial velocity इस डायरेक्शन में देते हैं बॉडी की. Each direction में throw करते हैं with initial velocity, but when it is left, it moves under the effect of g only. तो ये path adopt ऐसे करते हैं, and that is known as horizontal projectile motion. लेकिन ये better, we will discuss this thing later on. But first off, the most important here is angular projectile motion, and the only motion that is mentioned there in the NCERT is this motion. But I will discuss also this, because this is very very important also, just like this. ओके तो पहले बेटा क्या डिस्कस करेंगे यहां डिस्कस करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन. अब क्या है बेटा, देखो क्या है, देखो बेटा क्या है. तो पहली बात यहां क्या निकालनी है यहां कुछ पैरामीटर्स यहां निकालने हैं. एक पैरामीटर निकाले कि ये पाथ कैसी है. इक्वेशन ऑफ अ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. बेटे ये पाथ है पैराबोलिक पाथ, लेकिन इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन निकालनी है. ये हमारा यहाँ क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? पहला पॉइंट यहाँ, I have to determine, I have to find, I have to calculate here equation of motion, equation of path of the projectile. Here it is a parabolic path, but for that I have to write here mathematical. I have to write it mathematically, and that is known as equation of path of projectile. ट्रेजेक्ट्री जिसको कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कैसी है और इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं. पहला पॉइंट ये है. और दूसरा पॉइंट बेटे क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है बेटा? कि इसको कितना टाइम हवा में, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, ड्यूरिंग कितना टाइम लगा इसको, कितने टाइम तक ये हवा में रही. हाउ मच टाइम दिस रिमेन्स इन द एयर, एंड दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. और इसको कहेंगे इट इज द टाइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड. कितना टाइम लग गया इसको फ्रॉम प्रोजेक्शन टू हिटिंग द ग्राउंड, और इस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. इसके लिए भी बेटा एक्सप्रेशन निकालनी है. और थर्ड पॉइंट जो यहां डिस्कस करना है, एंड दैट डेट स्टूडेंट्स इज, ये क्या डिस्कस करना है बेटा? देखो क्या है. द थर्ड टाइप दैट आई हैव टू डिस्कस हियर इज मैक्सिमम हाइट. This is t here, time of flight is this, total time from this to this, and maximum height is this there. How much maximum vertical height during the motion it has raised. ऐसे नहीं बेटा, ऐसे कहेंगे how much the maximum height it has attained. The maximum height, देखो बेटे यहाँ g है, ये g ऐसी है, ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और माइनस है क्यों माइनस, और ये j कैप का मतलब है कि ये डाउनवर्ड्स है. लेकिन ये क्या, यहां से यहां तक है ये h मैक्सिमम. तो व्हाट इज h मैक्सिमम? इट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन. तो ये मैक्सिमम हाइट, इसके लिए भी क्या ये डिस्कस करेंगे बेटा. इसके लिए भी क्या निकालना है, ये हम t से लिखते हैं, tf से लिखते हैं, ये h मैक्स से लिखेंगे या और किसी चीज से डिनोट करेंगे, किसी पैरामीटर से डिनोट करेंगे, नो प्रॉब्लम. ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक टाइम, और यहां से यहां तक वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट, एंड दैट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग इट्स मोशन. ये भी बेटे डिटरमाइन करना है. पहला क्या करना है? इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है. तीसरा क्या करना है मालूम बेटा? मैक्सिमम हाइट that the body has attained during its motion from point of projection to the point of hitting the ground. Okay dear students, have you got this? Very important. Good students. Okay, very nice. देखो क्या है,
Now the fourth point that I have to discuss here is, fourth point is, dear students, that is horizontal range. Horizontal range. तो क्या डिस्कस कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? यहां से यहां तक ये मैक्सिमम हाइट है और रेंज है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड. लेकिन हॉरिजॉन्टली कितना है? हॉरिजॉन्टली कितना है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड? दैट इज नोन एज रेंज. डिस्कस करेंगे बेटे, एक एक पॉइंट यहां डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट. लेकिन थोड़ा मैंने लिखा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, क्या डिस्कस करना है. यहां पहले करना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, दूसरा डिस्कस करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा डिस्कस करना है मैक्सिमम हाइट, और लास्ट में एक्सप्लेन क्या करना है हॉरिजॉन्टल रेंज. और भी करने हैं डिस्कस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो भी यहां डिस्कस करेंगे. लेकिन दीज आर द मेन पैरामीटर्स दैट आई हैव टू डिस्कस हियर. तो लेट अस डिस्कस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. देखो बेटा क्या है, देखो बेटा क्या है, देखो बेटा क्या है. तो पहले क्या डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? शाबाश. व्हाट आई विल डिस्कस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, तो पहले बेटा डिस्कस करेंगे यहां. सी डियर, आई विल डिस्कस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पैरामीटर हियर इज, दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. बेटा क्या है पहला पॉइंट क्या है यहां? दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसके लिए इक्वेशन निकालनी है. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए क्या निकाले? इक्वेशन. सी डियर, देखो तमाशा, ये यहां बेटा एक्स एक्सिस है, और बेटे ये ग्राउंड लेवल भी है और एक्स एक्सिस भी है, और बेटे यहां क्या है? ये वाई. मान लीजिए कि यहां ये ओरिजिन भी है, यहीं से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहे हैं और यहीं से हम बॉडी को लॉन्च भी करते हैं with some initial velocity u, and then after that it occurs this path. Let this is thrown with initial velocity u. Let this u makes an angle theta with the x axis or with the horizontal or with the plane of the ground. तो ये ऐसी चल रही है. अब क्या निकालना है? फर्स्ट पॉइंट हियर इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. कुछ चीजें याद रखो बेटा. यहां only acceleration here is, this is two-dimensional motion, so I can break here motion into two components. I can break here, I can take separate equations of motion along x-axis, and I can use separate equations of motion along y-axis as per Galileo Galilei. Galileo Galilei ने क्या कहा? Galileo Galilei of Italy, Galileo Galilei of Italy, जबरदस्त जबरदस्त साइंटिस्ट. उन्होंने क्या कहा कि एक्स डायरेक्शन के लिए सेपरेट इक्वेशन यूज करो, एक्स डायरेक्शन के लिए सेपरेट यूज करो इक्वेशंस ऑफ मोशन, और वाई डायरेक्शन के लिए सेपरेट करो इक्वेशन ऑफ मोशन. किसने कहा बेटा? किसने कहा? बिकॉज उन्होंने कहा कि एक्स एंड वाई गोज इंडिपेंडेंटली, नो प्रॉब्लम. अगर आप एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे तो वाई पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आप y डायरेक्शन में यूज करोगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्स डायरेक्शन में. सो यू कैन सेपरेटली फर्स्ट ऑफ ऑल यहां रिजॉल्व करो वेक्टर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो सेपरेटली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और सेपरेटली एक्स एक्सिस में दिखाऊंगा बेटा यहां. दीज आर द बर्ड्स ऑफ ग्रेट गैलीलियो गैलीली ऑफ इटली, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट. दिखाऊंगा जबरदस्त पॉइंट बेटा. देखो क्या है यहां एक चीज है. तो देखो बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, ए दैट इज जी, दैट इज डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स है. दिस एक्ट्स वर्टिकली, दिस एक्ट्स वर्टिकली. तो बेटा ये किस पर असर करेगी? सिर्फ वाई कंपोनेंट पर, वाई डायरेक्शन पर. तो वाई डायरेक्शन में है यहाँ एक्सेलरेशन. क्या एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? नो नो नो. तो एक्स में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इस पाथ के लिए? 0. ये किसने कहा? गैलीलियो गैलीली का कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट बेटा. ओनली एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में. तो ये लिखेंगे, ये ए वाई है. एक्चुअली है क्या ये? दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस,
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ओनली फोर्स क्या मान रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली एक्सेलरेशन क्या मान रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कहां एक्ट हो रहे हैं, डाउनवर्ड्स, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या लिखिए यहां, जीरो, क्योंकि यू कैन टेक सेपरेट इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, यू कैन इंडिविजुअली एंड सेपरेटली यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, यू कैन यूज सेपरेटली एंड इंडिविजुअली equations of motion along y axis, they have independence, they are independent with each other. बात आई समझ में? तो बताइए x क्या है, जीरो. व्हाट इज एक जीरो? पहली बात देखो यहां, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहां, किस डायरेक्शन में, along x axis is zero, is zero. Why? Because only acceleration that is here, that is along vertical direction, because I will break here motion, I will break here vectors into x-axis and y-axis, then I will take separate equations of motion along x-axis and y-axis, because they have independency. We can use them independently as per Galileo Galilei. Okay dear, very nice. तो x क्या मानना है, जीरो. क्या माना है, एक जीरो, हमेशा न्यूमेरिकल में एक जीरो मान लो. ओके, वेरी नाइस. ax, इस डायरेक्शन में ax क्या है, जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में ना कोई फोर्स है ना कोई एक्सेलरेशन है, तो ओनली फोर्स किस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिसकी वजह से कौन सी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आई बात समझ में, वेरी नाइस. क्योंकि ओनली फोर्स क्या मानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ओनली फोर्स क्या मानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी वजह से ओनली एक्सेलरेशन क्या मानते हैं, जी, और वो कांस्टेंट है 9.8, ऑलवेज इट्स वैल्यू इज 9.8 बट डायरेक्टेड towards the center of earth, but here it is directed vertically downwards, that is minus g. Okay, very nice. पहली बात. दूसरा क्या है बेटा, जब एक जीरो हो तो Vx क्या आएगा, बिकॉज देयरफॉर Vx रिमेन्स कांस्टेंट. क्या रहेगा Vx, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स हियर कांस्टेंट. देखो बेटा क्या, देखो क्या, देखो बेटा क्या है, तो चेंज किस पर है, सपोज ये u है, इस u को ब्रेक करो, ये मैं समझाऊंगा. ब्रेक दिस u इनटू टू कंपोनेंट्स, ये क्या आएगा, ये कंपोनेंट u cos थीटा, यहां u cos थीटा है, और ये कौन सा कंपोनेंट u का, u sin थीटा. क्या है बेटा, रिजॉल्व u इनटू टू कंपोनेंट्स. बेटे लिखेंगे, यहां लिखेंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं, लिखो पहले, लिखो पाथ ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, लिखो बेटा, रिजॉल्व u इनटू टू कंपोनेंट्स, u इनटू टू कंपोनेंट्स. क्या क्या कंपोनेंट्स बता, कौन से कंपोनेंट्स, दैट इज u cos थीटा, लेकिन किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स एक्सिस, एंड u sin थीटा किस डायरेक्शन में, प्लस वाई एक्सिस. आई बात समझ में? तो हमने यहां, बिकॉज हियर द मोशन इज अंडर द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ टू वेलोसिटीज, एक वेलोसिटी है एक्स एक्सिस और दूसरी वेलोसिटी है वाई एक्सिस. बिकॉज द मोशन हियर इज अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज, एक वेलोसिटी है क्या, हॉरिजॉन्टल, और क्या है, जब ये चलती है ना बेटा, तो दोनों वेलोसिटीज कंबाइन होकर चल, बोथ इट इज मूविंग इन फैक्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वेलोसिटीज. दोनों यहाँ, दोनों में चेंज आ रही है, u वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. दिस देखो बेटे क्या है, यहाँ दोनों वेलोसिटीज होंगी, क्योंकि जब ब्रेक करेंगे ना, तो यहाँ एक्स एक्सिस में भी वेलोसिटी होगी और वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी होगी. यही मेरा मकसद है. So this takes place under the combined effect of two velocities, that is one velocity along x-axis and another velocity along y-axis, because it is a two-dimensional motion. देखो बेटा, तो u को मैंने ब्रेक किया, that is u cos थीटा यहाँ और u sin थीटा. देखो बेटा क्या है, बात आई समझ में, नहीं आई, आई बात समझ में, नहीं आई, नहीं आई सर, आई सर. देखो बेटे क्या है, लेट एट, आप देखो क्या है, let at any instant of time, let at any instant of time, let at any instant of time, the body reaches, यहां लिखेंगे, the body reaches, let at any instant of time t, the body reaches to point p, the body reaches to point, मान लीजिए यहां, ये यहां, सपोज यहां से यहां तक कितना टाइम लग गया, t, कितना टाइम बेटा, t, यहां से यहां तक t. सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द बॉडी रीचेस टू पॉइंट p, ठीक है ना. तो कितना कवर किया उन्होंने बेटा, कितना कवर किया, मान लीजिए कि उन्होंने यहां से यहां तक, बॉडी ने यहां से यहां तक कितना कवर किया, यहां x, ये यहां x है,
वेलोसिटी यहाँ u cos थीटा, लेकिन कितना किया डिस्प्लेसमेंट, कितना किया x। और बेटा ये आपको पता है कि ये u sin थीटा है यहाँ, लेकिन यहाँ कितना किया ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना है, यहाँ से यहाँ तक y। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x एंड y? when body travels from O to B, it covers distance x horizontally but it covers displacement of y vertically. तो what are the coordinates of p here after time t? after time t के बाद point p के coordinates क्या है, x y, it means ना ये point p कितना दूर है x से, और ये कितना दूर है y axis से y की दूरी पर है। Okay, I have got this. Now I can use, I am resolving each and everything along x axis and y axis, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस अगर शॉर्टेस्ट लेंगे तो इस डिस्प्लेसमेंट का यहाँ कंपोनेंट x एक्सिस, और ये क्या है y, और वेलोसिटी का क्या है, इस u का क्या कंपोनेंट है यहाँ u cos थीटा, और यहाँ क्या है u sin थीटा। आई बात समझ में? ओके, वेरी नाइस। नो बेटा देखो क्या है, रीचेस टू पॉइंट p, हाँ क्या लिखा x y, दैट इज कवरिंग x डिस्प्लेसमेंट along x axis and y displacement कहां, y displacement along y axis। अब मैं यूज करूंगा सेपरेट इक्वेशंस ऑफ मोशन along x axis, सेपरेट इक्वेशन ऑफ मोशन along y axis, ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली, ये किसने कहा, गैलीलियो ने कहा, कोई चेंज नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन काम बनेगा, सॉल्यूशन आएगा, ब्यूटीफुली आएंगे। 2 डायमेंशनल मोशन रिड्यूस हो जाएगी 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी रिड्यूस 1 डायमेंशन में। जब हम सेपरेटली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसान बनेगा हमारा क्वेश्चन। देखो कैसी बेटा, देखो आप क्या, नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ओ टू कहां तक, पी तक, यूजिंग ये बात आई समझ में। ये कौन सा कंपोनेंट है यू का, यू cos थीटा, ये क्या है यहाँ यू sin थीटा, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है ना कुछ s, और इस s का डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है x, और यहाँ क्या है y। when body moves from O to P, it covers a displacement x axis and covers a displacement of y. So what are coordinates of P, that is x and y after time t? So I will take motion here from, dear students, I will take motion here from कहां से कहां तक, U to P, motion from कहां से कहां तक, मोशन फ्रॉम बेटा O to P, मोशन फ्रॉम O to P लेंगे। देखो बेटा, नाउ यूजिंग, क्या यूज करेंगे बेटा, यूज क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है ना। लेकिन कहां से कहां तक बेटा, मोशन कहां से कहां तक ले ली मैंने, फ्रॉम O to P, और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करूंगा इस्तेमाल, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, लेकिन कहां x एक्सिस, बिकॉज आई एम रिजॉल्विंग ईच एंड एवरी वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस बिकॉज इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। देखो बेटे क्या है, तो क्या है यहाँ O to P, यहाँ क्या है s के बाद ये क्या लिखेंगे x, क्यों, क्योंकि ये जब बॉडी यहां से यहां तक मोशन में है ना, यहां से यहां तक बेटा, जब बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक पहुंची, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस की तरफ उन्होंने किया, s कितना किया डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस x, तो यहां लिखेंगे uxt, दैट इज कंपोनेंट ऑफ u अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और प्लस लिखेंगे बेटा 1/2, लेकिन t को ऐसे लिखेंगे क्योंकि t इज स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज का लिखना है कंपोनेंट, 1/2 a के लिखेंगे ax और t स्क्वायर। This is equation of motion along x axis, but when motion takes place from 0 to P, यहां से यहां तक x करता है, और यहां इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, ये u cos थीटा क्या है, ये ux है बेटा, और ये u sin थीटा क्या है, ये एक्चुअली uy है। बात आई समझ में, व्हाट इज uy, u sin थीटा, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस, तो uy है। तो बेटा ये क्या है, ux इज द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस। ओके, आई गॉट दिस। और बेटा इसकी लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप क्या ले लो, देखो बेटा इसमें क्या करेंगे आप, देखो बेटा मजेदार चीज है। अब x तो x ही है, लेकिन ux क्या है, ux किसके बराबर है, ux बताओ, ux किसके बराबर है, u cos थीटा, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो u cos थीटा है, क्योंकि मैंने इक्वेशन ले ली horizontally, क्योंकि I can use equations horizontally separately, I can use equations vertically separately, as per Galileo Galilei,
तो बेटा क्या u cos थीटा प्लस लिखेंगे यहां 1/2 एक्स। बताइए एक्स कितने हैं? 0। क्यों? कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है एक्स एक्सिस में। ऑन एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि मैं सेपरेट इक्वेशन लिखता हूं अलग एक्स एक्सिस। बात आई समझ में? आसान है बेटा, मजेदार है, लेकिन समझ में आई बात? हाँ आई बात समझ में। तो एक्स क्या है यहां बेटा? एक्स है 0 और यहां टी स्क्वायर। बेटा क्या लिखूंगा? टी स्क्वायर। तो बिकॉज क्यों? बिकॉज ए एक्स इज 0, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ओनली एक्सेलरेशन हियर इज अलोंग वाई एक्सिस एंड दैट इज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन एंड दैट इज -g। तो बेटे क्या आया? आई बात समझ में? हाँ सर आई बात समझ में। एक 0 है, एक 0 है। तो बेटा देखो देखो बेटा, therefore x किसके बराबर आएगा? u cos थीटा t। u cos थीटा, यहाँ t है बेटा, t भी है ना, यहाँ t भी था, u का प्लस है यहाँ, u cos थीटा t। तो ये टर्म क्या आई? 0 इंटू टी स्क्वायर 0 एंड 0 इंटू 1/2 0। तो ये 0 आ गई बेटा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। एक्स एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन क्या है? ऑन एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स। याद रहा? सेपरेट लेता हूं मैंने, सेपरेट किए ना इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखो बेटा क्या है, आप देखो तो देखो, बता बेटा एक्स किसके बराबर है? एक्स किसके बराबर है? एक्स u cos थीटा t। ओके वेरी नाइस। दिस इज पोजीशन ऑफ एक्स, दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। कितनी दूरी पर है? u cos थीटा इंटू t। दिस इज पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन पॉइंट पार्टिकल पॉइंट p आफ्टर टाइम t। कितना है? u cos थीटा t। कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल p which is at position p after time t from the o। बात आई समझ में? नहीं आई बात समझ में? हाँ छोरा बात आई समझ में। तो t किसके बराबर है? t यहां t निकालेंगे। t किसके बराबर है? x बाय ये डिवाइड हो जाएगा क्या? u cos थीटा। और इसकी लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये एक्स कोऑर्डिनेट है लेकिन मैंने इसमें टी निकाला। जब भी पाथ निकालनी होती है ना, पाथ किसी की भी पाथ, तो टी को खत्म करो। किसको खत्म करो? टी को खत्म करो। अगर पाथ निकालनी है तो किसको खत्म करो? टी को खत्म करो। किसको खत्म करो? टी को खत्म करो। ओके वेरी नाइस, याद रखो हमेशा। देखो क्या है, इसीलिए टी का वैल्यू मैंने निकाला। टी किसके बराबर है? एक्स बाय यू कॉस थीटा। अब लेंगे मोशन फ्रॉम कहां से कहां तक? फ्रॉम अगेन O टू P। अब किस एक्सिस की तरफ? पहले इक्वेशन मैंने एक्स एक्सिस की तरफ ले ली, अब वाई एक्सिस की तरफ लिखो। मोशन फ्रॉम 0 टू P, मोशन फ्रॉम 0 टू P, O टू P, O टू P। लेकिन अलोंग व्हाट एक्सिस? अलोंग बेटा, अब अलोंग वाई एक्सिस ले लो। अब अलोंग कहां ले लो? वाई एक्सिस। कौन सी इक्वेशन यूज करो? यूजिंग इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। लेकिन अलोंग व्हाट एक्सिस? अलोंग बेटा कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। बेटा कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। तो यहां एस के बदले क्या लेंगे? वाई। और यू के बदले क्या लेंगे? यू वाई टी प्लस 1/2। ए के बदले क्या लेंगे? ए वाई टी स्क्वायर। आई बात समझ में? बेटे क्या ले लिया? एस के बदले क्या लिया? मना एस के बदले क्या ले लिया? वाई, क्योंकि यहां से यहां तक मोशन। तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस की तरफ करे? वाई। कितना करे? वाई। ठीक है ना? यू वाई है, एस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितने हैं? वाई। तो ये यू क्या है यहां? ये यू वाई है। क्या है? यू वाई है ना, यू वाई कंपोनेंट। ये किसके बराबर है यहां बेटे? ये यू साइन थीटा के बराबर। तो यहां के लेंगे यहां यू वाई के बदले यू साइन। तो ए वाई कितना है? ए वाई माइनस जी। ए वाई कितना है? माइनस जी। बात आई समझ में? नहीं आई बात समझ में? बेटा बात आई समझ में? हाँ। देयरफॉर वाई किसके बराबर लिखिए? वाई। यू वाई के बदले क्या लिखेंगे? यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2। ए वाई क्या लिखेंगे? ए वाई माइनस जी। और बेटा यहां क्या लिखेंगे? यहां टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। सो ऑन एक्सेलरेशन इज अलोंग वाई एक्सिस, ऑन एक्सेलरेशन इज अलोंग वाई एक्सिस। मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस ले ली। मैंने इक्वेशन ऑफ ये इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग कौन सी एक्सिस ले ली? वाई एक्सिस। तो देयरफॉर वाई किसके बराबर आएगा? वाई यू साइन थीटा टी प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसके लिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का टी का वैल्यू इसमें दे दो तो हमको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना? देखो बेटे क्या है, देखो बेटे क्या है, सबस्टिट्यूट। बेटे क्या सबस्टिट्यूट करो? सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, द वैल्यू ऑफ टी। टी क्या आया था पहली इक्वेशन में? टी आया था ना एक्स बाय यू कॉस थीटा, है ना? वो कौन सी इक्वेशन थी? फर्स्ट इक्वेशन। सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ टी
इन इक्वेशन सेकंड, इन किसमें डालो, इन इक्वेशन सेकंड, किसमें डालो, इक्वेशन सेकंड में, किसमें डालो, इक्वेशन सेकंड में, क्या बन जाएगी इक्वेशन सेकंड बेटा, देयरफॉर y becomes y is equal to u sin थीटा, t के बदले क्या दे दो बेटा, x by u cos थीटा प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस 1/2 g, लेकिन t के बदले क्या दे दो अगेन, x by u cos थीटा, लेकिन बेटा यहां क्या ले लो, इसका स्क्वायर, क्या ले लो, x by u cos थीटा का स्क्वायर। आई बात समझ में, हाँ आई सर समझ में। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t के बदले क्या लिखा, x by u cos थीटा माइनस 1/t g t स्क्वायर, t के बदले क्या लिखा, x by u cos थीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ, देखो बेटे क्या, y इज इक्वल टू u, यहां क्या है u, u और u क्या हुआ कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा क्या आएगा, tan थीटा, और बेटा यहां क्या है, x माइनस 1/2 g, बेटा x का सेपरेट स्क्वायर लिखो, x का सेपरेट स्क्वायर, और बेटा यहां लिखो u cos थीटा का, u cos थीटा को भी स्क्वायर लेकिन सेपरेट लिखो, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। What is this? This is the path of projectile. This is the path of the projectile. ये इक्वेशन किसके लिए आ गई, path of projectile, path of projectile। ये इक्वेशन किसके लिए आई बेटा, पाथ ऑफ, दैट इज पैराबोला, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो ये कौन सी बात है बेटा, पैराबोलिक पाथ, कौन सी बात है ये बेटा है पैराबोलिक पाथ, कौन सी बात, पैराबोलिक पाथ। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए, दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए पैराबोला। टी को खत्म करना है, टी को मैंने खत्म किया, तो व्हाट इज द पाथ ऑफ, तो जबानी याद रखो, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस 1/2 g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिस इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहां क्या करना है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 ले लो, और बेटा क्या करना है, देखो लेना है ना, तो सेपरेट इक्वेशन ऑफ x, इक्वेशन ऑफ मोशन x एक्सिस यूज करो, और सेपरेट इक्वेशन ऑफ मोशन y एक्सिस यूज करो, यू कैन यूज इंडिपेंडेंटली, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, t को खत्म कर लो, तो हमको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मिल जाएगी। कल डिस्कस करेंगे और भी, बेटा टाइम खत्म है इस वक्त। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, गुड लक टू यू।